So we have Mona Kaimi, who is from the Baha'i community of Islamabad. Then we have Mohsin Iyaz, who is from the Christian community of Islamabad. And then we have Jyoti, who is half Sikh and half Hindu. Yeah. So that's a very interesting combination. So we'll just get to know what they have to say. I'm just going to give them like each, I think, a 15-20 minute time that will bata sake, introduce kar sake, and then we'll move on to the next one. So, do you want to go first, Jyoti? Okay. Would you like to go first? Okay, I'll go first. Thank you. Okay. No, we are all a smaller group of people. So I don't know, is everybody comfortable with English, Urdu, or a mixture also not a problem? So, initially, thank you so much, Mama, for inviting me over. Thoda sa, we're strangers right now, so it's important from human connect ke thoda sa apne aap ko introduce bhi kiya jaye. So, I'm Mona Kaimi Mahmoodzadeh, and I've been recently married to this wonderful guy. Congratulations. So, thank you. The thing is, I am a Pakistani, but my father had come in from Iran way before partition, and I was born here, raised here. My mother's Pakistani, and I'm basically from Peshawar. I'm a HR professional from a career background, but from a belief background, I'm a Baha'i. Now, I don't know how many of you have heard about the Baha'i faith before, like if I can see a show of hands. I've spent 18 years in Karachi. Oh, very nice. Where? Interactive with people. Oh, very nice, very nice. So the Baha'i faith is only 177 years old. Okay, so that's how I would want to start it out. And what I will do, I'm going to just take some reference of materials, but there are a few things that Maha asked us to share. How does it feel to be raised in a Baha'i family? What are the concepts? And what are some key things? I think as a person, I might be a few years elder or younger than all of you sitting over here. But किसी भी दीन को समझने के लिए उस दीन के concepts को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जो book of laws है, जो book of administration है, वो हमें ज़िंदगी करने का तरीका सिखाती है, लेकिन जो दीन के concept है, वो बहुत important है. और दीन का concept तब समझ में आता है जब सबसे पहले हमें खुदा पे belief होती है. उसके बाद we need to understand कि what is the concept of manifestations of God. Mazahir Zuhur Ilahi. Who are they? Why are they sent? Then the concept of covenant of God. So while I'll be talking about all of this, I mean, feel free, if it's okay with you, that we can have a conversation, because मेरी आवाज़ मुझे खुद boring लगता है कि 2-3 मिनट के बाद. And I am no philosopher. I am just going to share my own experience. And I think one of the things that I would like to share, that in the Baha'i faith, one of the fundamental beliefs that we have is that you have to investigate the truth, जिसको उर्दू में तहरीर हकीकत कहते हैं, आपको खुद करना है. It doesn't mean that if you're born in a Baha'i family, you become a Baha'i. No, it's not like that. So you are bound to study, to learn the faith, because belief is a very personal thing. Okay, I can be married to Amir, but my belief and his belief are completely personal. But yes, as humans, we live together, right? And how do we socialize and how do we move forward, okay? So I'm just going to share a bit of concept. So who is God? I think God's creation, or who is God, is indispensable. Human mind, no matter how intelligent we are, we can't understand who God is, okay? We can't predict. एक मिसाल ले लेते हैं. This is a table, this is a chair. This product can never recognize its creator. Can it? It can never. But who can it become? It can become like the qualities that it is acquired. जब हमें कहा जाता है, बचपन से हम स्कूल में एक चीज़ सीखते हैं, and like all of you, I have learned Islamiyat, and I have gone through the wonderful concepts that Prophet Muhammad brought for us, or the concepts that Jesus brought for us, or Krishna brought for us. And the concept is what? That human beings are Ashraf al-Makhluqat, right? God has given us the capacity, and every human being has those spiritual qualities in them,
We just have to brush them up. And this is the world where we brush them up and when we take them there. Okay? So, the Baha'i faith is a world religion. It's not a religion restricted to a certain place. One of the myths about the Baha'i faith could be that, oh, is it a sect? Pakistan in this beautiful country that we live in? No, it is not a sect. It is a universal religion. It is 177 years old. And its purpose is to unite all the races and peoples of the world, because Baha'u'llah has come here with a certain message, and that message is to bring universal peace and oneness of mankind. Okay? The word Baha'u'llah means glory of God. Baha, Nur, Allah, God. So it's glory of God. Yeah? Baha'u'llah was born in Persia. Baha'u'llah is the manifestation of God of the Baha'i faith, and he was born in Tehran, Iraq. And we believe that Baha'u'llah is the promised one of this age. इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं that what do we mean by that? Let's consider कि खुदा ताला एक सूरज की तरह है. Okay? We know, and I think all of you will agree, कि हम में से कोई भी सूरज को जाके छू नहीं सकता. Because अगर हम जाके छुएंगे तो हम जल जाएंगे. We won't exist. So let's consider God as sun, and let's consider the concept of getting a mirror. It could be very, very clean, and you clean it up and you put it before the mirror, and it will start reflecting those rays of the sun to everyone. So manifestations of God, no matter what shape, form or timing do they come, they're all like those rays of sun, that glass, that mirror, that come in from time to time. What is important is that हमेशा कहा जाता है, I know most of us would have heard, okay, Christianity में भी तो ये है, Islam में भी ये है, हम Hindu religion में भी ये है, concept तो सब एक है. So why are there is a requirement for so many religions? As a Baha'i, I believe that the essence of all religions is one. But what will happen that whenever humans around this whole globe will forget God, will forget to follow the teachings of God, God has created us. So God says, O son of being, I love thy creation, hence why I created thee. Wherefore do thou love me, so that I may name thy name and fill thy soul with the spirit of life. So जब भी इंसानियत अपने पर्पस से भटक जाती है, तो खुदा ताला हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते. क्या ऐसा मुमकिन है? Can we ever think for a moment? Can we ever think? हमारे घर पे हमारे वालिदैन हमारी 24/7 रखवाली करते हैं till the moment they are alive. God has created us, and that's how He will always take care of us. And that's my belief, how I grew up in a Baha'i family. That whenever humanity will move away from its thoughts, God will send a manifestation of God. And that manifestation of God will bring His will and His purpose for us through that manifestation. क्योंकि जो खुदा का कलाम होता है वो अपने मज़ाहिर ज़ुहूर इलाही के तरीके ही हमारे यहाँ भेज सकते हैं, लेकिन उसका एसेंस जो है, उसका जो सोर्स है, उसका जो वजूद है, वो एक ही है. So if all of us just maybe take our own way, I don't know, you want to close your eyes, you want to do anything, if we ask ourselves this question, this world that we are living in right now, do we not feel that it requires, humanity requires God's assistance? Humanity requires His manifestation to come? That's the covenant. इसको कहते हैं concept of covenant. इसको कहते हैं concept of being eternal. कि हमारा और खुदा का एक अटूट रिश्ता है, वो कभी नहीं टूटेगा. So God will never leave mankind, and that's a powerful belief that I was raised. When you're a child, you have a lot of questions. And what I was always encouraged is to ask and explore.
So I understand that the concept of God is that God is one. I can pray to God. I can acquire His spiritual qualities. But I can never imagine. How can I learn about God? It's through His manifestation. And it is upon me to understand. So as a Baha'i, I need to believe in Muhammad. I need to believe in Jesus. I need to believe in Krishna, Buddha, and all the manifestations of God if I declare myself to be a Baha'i. I cannot pick and choose that, you know what, I'm going to believe this manifestation of God, but I'm not going to believe that. Okay? Is there any ritual in the Baha'i faith? I just want to correct something. There is no ritual in the Baha'i faith. When I pray, I'm not told how to pray. You know, let me try to say it in a way. So, there is a framework of life which is told of how a Baha'i should live his or her life. But you know what's the beauty of the Baha'i faith? Baha'u'llah did not come in this world to just come up with an island where a certain group of people will say, hey everyone, now I'm a Baha'i. No, that's not the purpose. We believe that He is the promised one of all ages, and He is here to build universal peace, which means people of different races will have to believe eventually in the message that He has brought for us. So when we come to rituals, we don't have a way of praying, but yes, if I am praying, it is my gupshup, it is my conversation with God. And if I talk to my parent, or if I talk to my friend Marzieh, I'm not going to talk to her like this and say, hi Marzieh, because I love her, I respect her, I feel her as a human being. तो जो खुदा ने जिसने हमें पैदा किया है, जब मैं उस ज़ात के साथ बातचीत करना चाहती हूँ, I might like to close my eyes, I might like to focus, I might like to be in a quiet place. There is a way that is told, but it's not a ritual. Okay? So yes, one of the myths about the Baha'i faith is that it's a sect, which I shared. It's not. The other is that it is only concentrated in Iran. It is not. It is universal religion, as it's the fastest growing religion in the world. And I think I'll just pause here for any conversations, because I've been hearing my own voice. So, hi guys. I will just come back to you after this. Yeah. Like, let's hear from Mohsin. Mohsin, आप बताना चाहोगे कि किस तरह एक तो like living in a Christian household हो, और दूसरी बात कि beauty of ritual in your religion, इसके बारे में अगर आप बात करना चाहो. मैं शॉर्टली ही बात करूँगा, और लेकिन कोशिश करूँगा कि समंदर को ना कूजे में बंद करूँ, पूरा शुरू से लेके एंड तक बता सकूँ. तो क्रिश्चियनिटी में भी कुछ बातें कॉमन हैं. मैडम जैसे बात कर रही थी तो काफ़ी चीज़ें कॉमन निकल रही हैं, और जब मैडम बात करेंगी तो और चीज़ें फिर मिक्स भी होंगी. तो मैं बात करता हूँ शुरू से. शुरू में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और इज़राइल वाला क्या था, जूस, ये काफ़ी सेम नज़र आ रहे हैं. ठीक है, एडम से स्टार्ट होते हैं, और सांप जो बाद में गुनाह करता है. अगर कुछ मैं बात ओवर कर जाऊँ तो वो प्लीज़ माजरत. तो क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुई बाग़ अदन से. बाग़ अदन में खुदा जैसे मैडम ने बताया कि अगर आप सूरज को कहते हो खुदा, तो सूरज को कोई टच नहीं कर सकता. सेम क्रिश्चियनिटी में खुदा एक नूर है, और नूर को कोई देख भी नहीं सकता. नूर कैसे देखेंगे, आंखें फट जाएंगी, इतना तेज़ नूर है. सूरज को आप कैसे जाके देख सकते हैं. तो सेम गॉड, खुदा नूर है. खुदा ने इंसान को बाग़ अदन में बनाया उसकी हमद और सताइश करने के लिए, और खुदा लाइव कन्वर्सेशन करता था. ये नहीं कि आप बस उधर देख रहे हैं और बात कर रहे हैं. लाइव कन्वर्सेशन होती थी एडम और गॉड की. शुरू में बाग़ अदन में सांप अबलीस ने एडम को बहलाया, ईव को बहलाया, उन्होंने वो फल खाया. और सबसे जो बड़ी और मज़े की चीज़ है क्रिश्चियनिटी में, वो लिखा होगा कि आपने खुदा के कलाम में कोई चीज़ बढ़ानी नहीं है, कोई कम नहीं करनी. तो जब सांप और हवा की गुफ्तगू चल रही है ईव की, तो वो क्या कहते हैं
कि क्या खुदा ने तुम्हें एक दरख्त के फल खाने से मना किया? कहते हैं हाँ मना किया। उसने एक चीज़ ऐड की इधर, हवा ने एक चीज़ ऐड की, बल्कि खुदा ने तो छूने से भी मना किया इस दरख्त को। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, शाम कह रहा है, अच्छा ऐसी बात है, मैं शॉर्ट ही करूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं हूँ, अच्छा ऐसी बात है, चलो आप इस दरख्त को छू के देखो। उसने दरख्त को छुआ, उसे कुछ भी ना हुआ। पहले देखा कुछ नहीं ना हुआ। तो वो चीज़ जब उसने इंक्रीज की, तब जाके सांप ने ईव के दिमाग में फौरी उसे पकड़ा और उसी पॉइंट पे लेके आगे चला गया। उसने खाया तो खुदा ने सज़ा के तौर पे उनको बाग से निकाला और कहा कि मर्द जो है वो मेहनत मजदूरी करेगा और अपने घराने को संभालेगा, और औरत दर्द से बच्चा पैदा करेगी। सो वहाँ से ये बाग से निकले और ज़मीन में आ गए। अब मैं बहुत तेज़ जाता हूँ। फिर सारा का सारा जो है इंसान ने, वो जब आदम ने गुनाह किया तो वो जो आदम से गुनाह ना फॉरवर्ड होता रहा, बच्चे पैदा होते हुए, और उसकी बॉडी से वो गुनाह बच्चों में पैदा होता रहा। बेशक कोई भी इस दुनिया में जीसस से पहले था वो गुनाह था, मगर उसी गुनाह उसके अंदर था। जो वो मिलते थे तो वो बच्चा पैदा करने के प्रोसेस में वो मगर उसी गुनाह के अंदर हो जाता था, चला जाता था, ऑटोमेटिकली चला जाता अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन बिलीफ। तो जब इस टाइम पे आके खुदा ने एक प्लान था खुदा का कि जीसस क्राइस्ट का सेक्रीफाइस इस वजह से जुड़ा, क्योंकि कोई ऐसा बड़ा नहीं था। कोई यहूदी बहुत कुर्बानियाँ करते रहे, लेकिन वो जो कुर्बानियाँ थी वो क्या होता था कि कुछ टाइम के लिए ऐसा रखती थी, लेकिन खून है ना, बड़े का खून है, बड़े ने मर जाना किसी टाइम पे, 4 साल 5 साल नहीं 20 साल ज़िंदगी होगी। तो वो जब 20 साल पर उसकी ज़िंदगी, वो खून ख़त्म, ब्लड ख़त्म। तो जीसस क्राइस्ट का इसलिए सेक्रीफाइस ज़रूरी था। मैं बहुत फास्टली जा रहा हूँ। जीसस क्राइस्ट का इसलिए सेक्रीफाइस ज़रूरी था क्योंकि वो इंसानी तुखम से पैदा नहीं हुआ था। जीसस क्राइस्ट इंसानी तुखम से पैदा नहीं हुआ, उसके अंदर पर उसी गुनाह ही नहीं था। कुंवारी हामला हुई थी तो जीसस क्राइस्ट पैदा हुए। जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए तो उनकी कुर्बानी हुई और उनके लहू ने सारी दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। ना क्रिश्चियन के, ना हिंदू के, ना मुस्लिम के, किसी और मजहब के, सारी दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर वो लेके गया। और बाइबल में ये वर्स है, देखो ये बेअब बड़ा है जो तमाम दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर लिए जाता है। तो जब जीसस क्राइस्ट का जब वो सेक्रीफाइस हो चुका, तो फिर हम कहते हैं कि अब जो है ना, अब क्रिश्चियनिटी बहुत ना फ्लेक्सिबल हो चुकी है। पहले जो दौर था वो बहुत सख्त दौर था, आँख के बदले आँख, शरीयत के दौर की मैं बात करूँ, खून के बदले खून। तो अब लोग कहते हैं कि नहीं यार, अब तो ऐसी बात नहीं, अब बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो चुकी है। लेकिन अब फ्लेक्सिबिलिटी कोई नहीं है। अब ये सीन है कि अगर कोई किसी के बारे में बुरा सोचता भी है तो उसने वो कर लिया क्रिश्चियनिटी में। अब इतना सख्त है कि अगर किसी ने किसी के बारे में सोच भी लिया तो वो कर लिया। और आई थिंक कि मैंने कवर कर दिया, बाकी तो करते रहेंगे, बातें काफ़ी लंबी हो जाएंगी। और जो हमारी रिचुअल्स है और इबादत है, क्रिसमस और ईस्टर वो इवेंट है जो भी हम सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस की बात करें तो बाइबल में उसकी एज इट इज़ कोई डेट नहीं हमें मिलती, लेकिन जिक्र है, जीसस की पैदाइश का जिक्र है, सब कुछ है। अब डेट जो फिक्स की है वो अगर आप बाइबल में ढूंढते रहेंगे कि अभी डेट मिल जाए, वो नहीं मिलेगी। डेट हमारे स्कॉलर्स ने खुद डिसाइड की कि चलो ये डेट रख लेते हैं, इस पर हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर देते हैं एज ए डेट ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। और ईस्टर की बात यह है कि जब रेजरेक्शन की बात करते हैं, तो जब जीसस क्राइस्ट तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था, तो उस इवेंट को हम सेलिब्रेट करने के लिए उसका ईस्टर का नाम रखा हुआ है और वो इवेंट हम सेलिब्रेट करते हैं। और इबादत करने का तरीका मैडम ने जैसे बता दिया, उनके साथ सिमिलर ही है कि इबादत का मकसद ये है कि खुदा के साथ रब्ता। अगर आप आंखें बंद करके कर रहे हो, खुदा के साथ रब्ता हो रहा है, आंखें बंद करके कर रहे हो। अगर आपको वो खुदा सामने नज़र आ रहा है, हक मौजूद, तो आप वहाँ देख के बात करें, ये खुदा के साथ रब्ता। अगर आप 4 घंटे की इबादत कर रहे हैं, सोच रहे हैं, नफ्स इधर से ले रहे हैं, इधर से ले रहे हैं, भाई पढ़ी जा रहे हैं, लेकिन अगर खुदा के साथ आपका रब्ता नहीं हुआ तो आपकी इबादत नहीं है। तो जो स्टीरियोटाइपिंग है हमारे मज़हब में कि थोड़ी देर में आता है, आई थिंक हम ज्योति से पूछते हैं और फिर हम सबसे पूछते हैं। Jyoti, would you like to say something? पहले मैं थोड़ा अपना कंफर्ट जोन क्रिएट करूँ क्योंकि बात करना आसान नहीं है, और रिलीजन पे बात करना या इस तरह से मैंने कभी नहीं किया, कोशिश की कि ना की जाए, स्कूल में भी, यूनिवर्सिटी में भी, वर्क प्लेस पे भी।
बस कोशिश यही की कि ना की जाए बात। वही इशू है कि जी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो थोड़ा सा अपना कंफर्ट लेवल आ जाए कि बात करना क्योंकि आसान नहीं है। अच्छा, मैं क्योंकि उसी सोसाइटी का प्रोडक्ट हूँ जहाँ से हम सब हैं कि रिलीजन पे बात नहीं करनी, घर पे भी नहीं करनी। जो कहा गया है वो कर लो, जैसे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जस्ट फॉलो इट। देयर इज़ नो रीजनिंग, देयर इज़ नो स्टडी until you reach a certain age, right? जब तक आप खुद मेच्योर नहीं हो जाते, आपको सवाल करने की इजाज़त नहीं होती। अगर आप सवाल करते हैं तो आप आगे हैं। आप उस रिलीजन को शायद पीपल टेक इट दैट वे के इंसल्ट कर रहे हैं। हाउ आर यू क्वेश्चनिंग द रिलीजन एंड थिंग्स दैट वी फॉलो, वी डू, हाउ कुड यू डू दैट, राइट? तो वो चीज़ें मैं भी उसी दौर से गुजरी हूँ, बचपन सारा उसी तरह गुजरा, जो बताया गया, जो सिखाया गया, बस वही किया। एंड ऑनेस्टली रिलीजन को पढ़ना तब शुरू किया, फॉलो तो करते थे रिचुअल्स भी सब कुछ, लेकिन खुद से उस पर सोचना और पढ़ना तब शुरू किया जब बाकियों को जवाब देना था, जब सवालात हुए और वो कॉन्वर्जेशंस क्रिएट हुई, तो अच्छा पढ़ के आती हूँ फिर बताती हूँ कि क्या है, तो तब पढ़ना शुरू किया ऑनेस्टली। As far as my family is concerned, my father was a Hindu and my mother belonged to a Sikh family, so that's how I'm half Hindu, half Sikh. वो इस तरह से है कि it was an interfaith marriage, और बचपन में अब although these two religions are very different and that I came to know quite later at a later stage, लेकिन ये था कि बचपन से बस उसको फॉलो कर रहे थे जैसे है। मतलब देखा जाए तो सिखिज्म इज कम्प्लीटली अगेंस्ट आइडोलेट्री, और एट द सेम टाइम मैं गुरुद्वारे भी जा रही हूँ और मैं मंदिर में भी जा रही हूँ, एंड आई एम ऑब्जर्विंग द आइडल्स एंड एवरीथिंग। तो वो तब सोचा नहीं ना कि क्यों, ऐसे कैसे, अगर मैं सिख हूँ तो मैं ये क्यों कर रही हूँ, और अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं उनकी बात क्यों मान रही हूँ। सो वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा, लेकिन वो बाद में समझ में आया। तो बचपन में तो हम सब करते थे, गुरुद्वारे में भी फिरते थे, और being a student of a missionary school, हमने क्रिसमस टैबलेट्स में भी पार्टिसिपेट किया और पूरी वो क्रिश्चियन रिचुअल्स फॉलो किया। एथिक्स तो तब नहीं होता था, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, सिविक्स एंड एथिक्स, तो वी यूज्ड टू स्टडी स्क्रिप्चर। हम बाइबल पढ़ते थे जितने माइनॉरिटीज़ के थे, तो मी एंड माई सिस्टर एंड देयर वाज अनदर फैमिली, हम बस 3-4 लोग थे पूरे स्कूल में, तो वी यूज्ड टू स्टडी विद क्रिश्चियंस। हमने सारी जिंदगी बाइबल पढ़ी और क्रिश्चियनिटी को स्टडी किया, क्रिसमस सेलिब्रेट किया, और फिर मुस्लिम सोसाइटी में रहते थे तो फ्रेंड्स भी इस तरह से थे, ईदें भी मनाई, और ऑब्वियसली वो जब मुहर्रम आता था तो हम उसको भी ऑब्जर्व करते थे। माय फादर यूज्ड टू हैव दैट सबील, वो करते थे कि भाई यहाँ से गुजरेगी उनका जुलूस, तो मैं उनको भी पहुँचना चाहिए, फ़ायदा सब कुछ। तो हर चीज़ सेलिब्रेट की, हर रिचुअल देखा, सबके साथ पार्टिसिपेट किया, लेकिन पढ़ना नहीं सीखा। मतलब ये इस सवालात नहीं उठे ज़हन में जब तक कि हम बड़े नहीं हुए कि क्या है रिलीजन, एक्चुअली है क्या, क्यों है, हमारे क्या प्रिंसिपल्स हैं, या हम किस चीज़ को फॉलो करेंगे और कैसे करेंगे। जैसे मोना ने भी बताया कि इबादत का प्रॉपर तरीका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, रिलीजन्स में किस तरह से होता है, तो वो चीज़ें नहीं देखी जब तक कि बड़े नहीं हुए। बट देन व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग, तो डिफरेंसेस आए, एंड आई एम स्टिल ऑन अ सर्च फॉर माई सेल्फ आइडेंटिटी, कि मैं खुद क्या हूँ, या मैं किसको फॉलो करना चाहती हूँ, या मेरा दिल या जहन किस तरफ ज़्यादा किस तरह से होगा, वो आई एम स्टिल ऑन दैट सर्च। So whatever experiences that I have and whatever knowledge that I have of the religions, that I'd like to share, but as far as myself is concerned, I'm still on that search, honestly. That's such a wonderful combination, I think, क्योंकि वो एक बहुत कलरफुल सी सारा सिचुएशन है ना, कि मंदिर भी जाना है और गुरुद्वारे में भी वो चर्च भी जाना है। हमने सुबह असेंबली है तो वो हिम्स हम पढ़ते थे, और वो हमारी मैम यूज्ड टू हैव अ प्रेयर प्रॉपर वो होती थी, तो वो जो क्रिश्चियन स्टाइल ऑफ प्रेइंग है, या वो सब हमने किया। हमने हिम्स जब पढ़ते थे तो वी यूज्ड टू रिसाइट दोस ग्लोरी टू गॉड और वो सारी जितनी हैं, तो हमने वो सब कुछ किया। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि हम क्या करते हैं कि पहले अक्सर जो है कि हम सोचो पढ़ो तो टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा,
तो बचपन से जब वो देखा तो उससे ये हुआ कि टॉलरेंस तो ऑलरेडी हमारे अंदर थी, एक्सेप्टेंस तो हमारे अंदर ऑलरेडी थी, रिस्पेक्ट ऑलरेडी थी। रिस्पेक्ट, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, वो क्योंकि उस सोसाइटी में इस तरह से बड़े हो रहे थे ना, तो वो सब कुछ खुद ब खुद डेवलप हो गया। तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो रहे ही नहीं। तो वो जो बड़े हुए तब समझ में आया। अच्छा कहते हैं हिंदू बुरे हैं, सिख बुरे हैं, क्रिश्चियन बुरे हैं, कैसे बुरे हैं? हम उनके साथ खेल खेल के बड़े हुए हैं, उनके साथ सब कुछ किया है, वो तो वैसे ही है जैसे हम हैं। तो वो अब जब समझ में आता है अच्छा ये लड़ाइयाँ झगड़े इस तरह हो रहे हैं, तो हम कहते हैं नहीं यार, हमने तो सारा बचपन ऐसे ही गुजारा है, तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो वो डिबेट होती है एक्चुअल स्टडी के ऊपर, और वो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कम्युनिकेट कर दी गई हैं और आपने बिना पढ़े सोचे समझे उन पर आँख बंद करके यकीन भी कर लिया है, डिबेट भी शुरू कर दिया है, एंड यू डिडंट रेड एनीथिंग अबाउट इट। तो फिर इसलिए लड़ाइयाँ भी और कॉन्फ्लिक्ट्स भी। या आई थिंक आप थोड़ा सा इसमें डिफेंसिव मोड में भी आने की भी कोशिश करो। यू टेल समथिंग एट होम कि आज पता है ये मुझे किसी ने कहा, योर पेरेंट्स वुड ऑलवेज फील लाइक अच्छा इसके ऊपर डिबेट नहीं करनी, डिस्कस नहीं करना ये, क्योंकि बस ये एक अजीब सा एंग्री सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा एंड जस्ट डोंट टॉक अबाउट इट। सो या, speaking of that, I think let's begin with Mona. Mona, would you like to share some like stereotype experiences? पहले जो अगर school life में रहे हो या like you know something that made you really angry at something like in this society. Yeah, I tried really hard thinking about that, Yeah. to be honest. I mean, since I was a child, and then, okay, so when I was a child, I was studying in Peshawar, did my college from Peshawar, then came, bachelor's from Peshawar, then came here for university, and been working all across Pakistan and internationally. I think we have a very great set of people that we live with in this country. I have never ever felt that my friends, like you were sharing, would say, oh, you are a Baha'i, so I'm not going to come to your house. I'm not going to eat a meal in your house. या मैं तुम्हारे घर खाना नहीं खाऊंगी, या नहीं भिजवाऊंगी, या कुछ भी नहीं. या my parents would tell me, no, don't go here, or don't interact, या don't go to the church, or don't go to to the mandir. No. So I think I have never felt any stereotype. I think since I was a child, yes, there are holy days in the Baha'i faith, and there are days of happiness and then the days of sadness. And I made sure that, I shared with my friends from day one. I shared with my school teacher, my principal, and, I just have a feeling that हम कहीं जाते हैं ना, जैसे हम चाय लोग में आज बैठे हैं, हम यहाँ पे चाय पियेंगे, हमें बहुत अच्छी लगेगी. The person who's your friend, you will go and tell that person, यार, I had tea over there, बहुत मजे की थी, मैंने उधर बर्गर खाया, बहुत अच्छा था. जब हम जिंदगी की इतनी छोटी छोटी चीज़ों को शेयर करते हैं, तो guys, I just want to leave you with a thought. जो आपके लिए सबसे important चीज़ है, the reason of our existence is what religion defines us. How would you not share that? How would you not share the message of God with others? I think that's the concept with which I was raised, so that's why I have never had a fear. When you are raised like that, and when you exhibit like that, so no, I have never felt that, even at my workplace, even wherever I worked. My last job was with a group of factory workers. There were 3,000 in number, and everybody knew. I never felt anybody telling me, you know what, you are not a Muslim, or you are this, or you are that, because this is an Islamic country. No, I think, in fact, it's a privilege for us to be part of this country, because it is so multicultural and there is so much tolerance. If you look at, I'd just like to mention this, that if I look at the government, as Baha'is, we must abide the government of any country that we are in. But we are not involved in politics. We are not allowed to be involved in politics because there's a different concept, we can talk about it later. But within Pakistan, as a Baha'i, yes, in terms of numbers, we are a minority. But yes, in terms of recognition by the government, yes, our holy day is accepted, there's a public holiday. So when you live in such a culture, you don't feel it that way. And I have never felt that. I have always felt this. I've always been asked a question. So because it's a new religion, everybody would ask, "Acha, ye koi sect hai?" Then you say, "No, it's not a sect," and that's how the conversation goes on.
Yeah. People often ask Baha'is, like every time I mention it to someone, they're like, अच्छा तो ये शिया इस्माइली आती है उनकी कोई वो है, it's like Baha'i, no, it's a completely different. Yeah. Okay, so Mohsin, आप अभी बात कर रहे थे stereotypes के ऊपर और आपकी ज़िंदगी में आपके चाइल्डहुड में या अभी बड़े हो के आपने कोई stereotype से डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया हो तो अगर आप वो शेयर करना चाहें। जी, मैं अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जब गए तो छोटे बच्चे थे और वहाँ ना मेजॉरिटी क्रिश्चियन की थी, तो वहाँ इतना फील नहीं हुआ, बस निकल के आगे चले गए हैं। जब पहुँचा कॉलेज में तो वहाँ मैं अकेला क्रिश्चियन लड़का था और पूरी क्लास में वो एक ना अजीब सा इन्वायरमेंट बन जाता था। जब घर से निकलते थे तो घर वालों ने भी यही कहना, माइंड प्रोग्रामिंग कर देनी, रिलीजन पे बात नहीं करनी, जो भी होगा बस आपने क्या करना, ठीक है भी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं करनी आपने ना। तो वो वहाँ बड़ा अनकम्फर्टेबल सा फील होता था स्कूल में। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मुस्लिम लड़के पूछते थे और हम कोशिश करते थे इग्नोर ही करें, जैसे कि शराब पीना तो आपके मज़हब में हलाल है, आप लोग रोज़े में पकी हुई रोटी नहीं खाते, चूल्हे की पकी हुई रोटी नहीं खाते, बाकी सब कुछ आप लोग कर लेते हो। और क्रिश्चियनिटी के साथ, रिलीजन के साथ बिजनेस को भी जॉब को भी जोड़ दिया कि ये सफाई करना तो ये सिर्फ क्रिश्चियंस का है। तो मतलब चलो पहली जो बातें थी वो तो रिलीजन से कर रही थी और ये तीसरी भी साथ जोड़ दी कि यार क्रिश्चियन ही बस सफाई करते इधर, और क्रिश्चियन के साथ एक बहुत लफ्ज़ जोड़ दिया, आप सब लोग सुनते भी होंगे, चूड़ा। तो ये सारे के सारे जो स्टीरियोटाइपिंग है ना, मतलब पहले दो तो फिर भी हमें समझ आ जाता, ठीक है ये मिसकंसेप्ट है, हम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये चूड़ा और ये सफाई करने वाला ये कुछ समझ नहीं आती थी कि ये रिलीजन के साथ क्यों जोड़ती गई। तो जवाब होता था, लेकिन हम इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम उनको ना बता सकें कि यार ऐसा नहीं है, ये नहीं है। और जब मेरा भाई बिहार में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ मैस में गए तो सरकारी ऑफिस है यहाँ, तो उनके बर्तन ज़्यादा रखे हुए क्रिश्चियन के जितना भी स्टाफ था। तो ये सारी चीज़ें जो थी हमें फेस करना पड़ी। और मेरे लिए खुशी की बात भी ये कह सकता हूँ और मैं लकी भी हूँ कि मेरा ज़्यादातर इंटरेक्शन प्रोफेशनल NGO सेक्टर से रहा। हाई पाकिस्तान के साथ मैं 2019 से काम कर रहा हूँ, तो ये बड़ा ना सेफ स्पेस होती है हमारे पास कि हम बात कर सकें। और मुझे मेरे घर वालों से मोटिवेशन नहीं मिली, बल्कि इन जैसे अली भाई और बाकी ज़िया साहब हैं, आफ्ताब साहब हैं, इन जैसे लोगों ने मोटिवेशन दी जो इंटरफेथ आर्मी पे काम कर रहे हैं, माइनॉरिटी राइट्स पे काम कर रहे हैं। तो आज इन्हीं की वजह से ही मैं सामने बोल रहा हूँ कि ये हमारे पास स्टीरियोटाइपिंग और कुछ क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश भी करूँगी। थैंक यू। आई थिंक जितना आपका आपने कलरफुल वो बताया उतना आई थिंक वो मार्जिनलाइजेशन का शायद आपको और डिस्क्रिमिनेशन के साथ। अच्छा, ये सवाल जब भी किया जाता है ना तो मैं बोलती हूँ कि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज आई एम प्रॉब्ली प्रिविलेज्ड टू बी इन रावलपिंडी इस्लाम, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो बैकवर्ड एरियाज में एक्चुअली वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। हमने शायद उस लेवल पे नहीं किया है थोड़ा बहुत, लेकिन उस लेवल पर नहीं किया ऑनेस्टली। एक बात के डिस्क्रिमिनेशन के लिए आप ज़्यादा वल्नरेबल तब हो जाते हैं जब आपकी सोशो इकोनॉमिक स्टेट भी ना वो नहीं अच्छी नहीं है, ठीक है। आई बिलोंगिंग टू अ इन्फ्लुएंशियल फैमिली, मेरे फादर अच्छे थे और मतलब वी हैड अ नाइस बैकग्राउंड, फाइनेंशियली भी हम स्टेबल, सोशली भी हमारा रेपो अच्छा, तो वो आपको इज्जत उस तरह से दी जाती है, उस वजह से भी दी जाती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये मैं सही बंदा नहीं हूँ ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि जो लोग एक्चुअली ऐसे एरियाज में रह रहे हैं और फिर उनकी हालत भी इस तरह से है, दे बिलोंग टू अ पुअर बैकग्राउंड इस तरह, तो actually they are facing discrimination और extreme violent discrimination वो face कर रहे हैं। Although she is right, we are blessed to be in Pakistan कि हम बात कर सकते हैं, हम अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं, गवर्नमेंट is really helpful, ठीक है, and they really address our issues। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते, mass level पे जो भी issues होते हैं गवर्नमेंट उसको address करती है, बहुत से problems उन्होंने address किए हैं, लेकिन still है लोगों के साथ होता है। और मैंने जो अगर पर्सनली फेस किया तो वो छोटा मोटा कि जी खाना नहीं खाएंगे आपके साथ, तो मुझे बाद में पता चलता था अच्छा मेरे साथ क्यों नहीं खा रहे। What was that like? On my very first job, वो पहली जॉब थी, मुझे नहीं पता था क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि हम घर से खाना लेके आते होते हैं। अच्छा, मैं घर से खाना लेके आई
तो सब शेयर करके खा रहे हैं, मेरा खाना कोई नहीं खा रहा। तो फिर जो पियन था, देन लेटर ऑन ही टोल्ड मी आफ्टर अ फ्यू मंथ्स के मैडम वो तो ये कह रहे थे कि इनके घर का खाना नहीं खाना। चलिए कोई बात नहीं, ना खाने मेरे पास आ रहा है खाने। तो वो छोटा सा एक ही इंसिडेंट है। फिर एक दफ़ा वंस आई अप्लाइड फॉर अ जॉब, तो फिर कॉल आई है, तो नाम पूछा, फिर अच्छा आप हिंदू हैं, वहीं से टोन बदल गई, अच्छा ठीक है हम बताएंगे, ऑन द डिस्कनेक्टेड। मतलब ये बहुत माइनर से हैं, दे डजंट मैटर, मतलब ये आपकी वो एग्जिस्ट भी नहीं करते कहीं, छोटी मोटी डिस्क्रिमिनेशन। तो मैथ्स लेवल पे एक्चुअली लोग ठर के लोग फेस कर रहे हैं। मतलब मेरी अब अपनी मैं फैमिली की बात करूँ तो मेरी कज़न है, वो ननकाना साहब से बिलोंग करती हैं, और शी इज़ गवर्नमेंट टीचर। तो वो ननकाना साहब से भी आगे एक छोटा सा गांव है, वो वहाँ जाती हैं रोज़ पढ़ाने गवर्नमेंट स्कूल। तो वो उनकी इन्वायरमेंट में वो जो चीज़ें फेस करती हैं, तो टेल्स मी कि मतलब बच्चे भी हमें एक्सेप्ट नहीं करते, एज ए टीचर तो रिस्पेक्ट नहीं करते। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो वो पूरी तरह से फेस करते हैं, फिर स्टाफ में आगे से इश्यूज होते हैं। लेकिन अगेन मैंने वो चीज़ें पर्सनली फेस नहीं की जो लोग कर रहे हैं। राइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोग की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आए हुए थे। तो उसके अंदर एक हिंदू जो के दिल से थे, देर से उन्होंने ये कमेंट किया कि जब हम लोग सिल्क में होते हैं तो हमें बिल्कुल भी नहीं फील होता है, जब मुहर्रम आता है तो हम उनके साथ होते हैं, जैसे आपने बताया कि रील लगाते हैं, जब ईद आती है तब हम लोग मुसलमानों के साथ होते हैं, फिर दिवाली होली पे वो हमारे साथ होते हैं। लेकिन जब हम सिल्क से बाहर निकलते हैं, लाहौर इस्लामाबाद आते हैं, तब ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है। फिर हर बंदा ये कहता है कि अच्छा तुम हिंदू हो, अच्छा इसके साथ नहीं बैठ के खाना खाना, या इसको हैप्पी दिवाली नहीं कहना, फेसबुक पे स्टेटस नहीं लगाना, क्योंकि उससे आप जो है ना वो बहुत एक आई थिंक फिर मुस्लिम ईगो हर्ट होने वाली बात हो जाती है वो। तो आई थिंक we're just gonna open the floor for questions. अगर किसी के पास कोई है बात पूछने को तो Can I just say something over here? I think, and I won't deny any of the stereotypes जो आप लोगों ने share की, but has any manifestation of God come and said for any human being to do this? Of course not. No. So then there is one question. That is it that we are following the word of God, which is sent through the manifestation, or is it that we are following the word of a man? Because word of God will never have this feeling that we are feeling, all of us right now in this room. It's not possible. दुनिया में अल्लाह ताला से ज़्यादा हमसे कोई भी प्यार नहीं करता। उसकी ज़ात, हम उस हस्ती को कुछ भी नाम दे दें, उससे ज़्यादा हमसे कोई भी प्यार नहीं करता, राइट? बिकॉज ही क्रिएटेड अस आउट ऑफ प्योर लव, दैट्स इट, राइट? नो अदर पर्पस। तो जब किसी भी मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड पे उसने हमें ये मैसेज नहीं भेजा, सो इट्स बेसिकली द वर्ड ऑफ मैन, एंड हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट that we understand that it is the word of man which creates prejudice. It is the word of man which creates hatred. It is the word of man which creates disunity and discomfort and such a feeling. The word of God, which is again responsible for each one of us. What is our purpose of life? Our purpose of life is to know Him and to worship Him. And we will only worship Him through His manifestation. That's why we must investigate, and that's why we must know that what is His word for this day. So that's just a thought that, this, Krishna never brought this message. Jesus never brought this message. No, this is the word of man. This is not the word of the manifestation of God. And that is why, from time to time, as I was sharing, there is a covenant. And जब कभी भी अल्लाह ताला को नजर आता है कि there is destruction everywhere, there is a new manifestation that comes. And that's, when we go through that, when we believe that. On that note, Mona, don't you think ये जो the word of man है, ये थोड़ा ज़्यादा multiply हो गए over the past 15-20 years? Because if we hear our parents' stories और उनकी चाइल्डहुड की जब हम बातें सुनते हैं तो वो एक बहुत ही इंक्लूसिव सी सोसाइटी पोर्ट्रे करते हैं हमेशा।
और हमेशा ये बताते हैं कि हमारे साथ क्रिश्चियंस भी रहते थे, हिंदूज भी रहते थे, और हम उनके साथ क्रिसमस मनाते थे और हमारे साथ ईद मनाते थे। और ये सारी स्टोरीज मैंने फर्स्ट हैंड सुनी अपने घर में। बट एंड यू नो अब जैसे जैसे हम बड़े हुए टीनेज में, यूनिवर्सिटी में, उस टाइम से लेके अब तक अब हमें रियलाइज़ होता है कि बहुत ज़्यादा एक हेट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इवन सेक्स के बीच में बहुत ज़्यादा एक एनिमोसिटी है कि अच्छा, फिर आपको भी बहुत जज भी किया जाता है ना हर चीज़ पे कि वाई आर यू प्रमोटिंग दैम, लाइक तुमने इस तरह की बात क्यों की। आई थिंक बहुत ज़्यादा एग्रीगेट हो चुकी है सिचुएशन। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमारे सारे स्टोरीज बैठिए, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। Yes, yes. Another question, basically, it's your personal experience with the Poly community. Okay. तो Let's इसको take it मुझे- from मैं ज़्यादा बात करूँगा। ठीक है, आप अच्छा बोलें क्योंकि हम रिकॉर्ड कर अच्छा, रहे okay, हैं। sure. अच्छा, I belong to Nuwakshara. Basically, Punjabi speaker, but I spend my time in Nuwakshara. तो पहली बात वहाँ ने की कि वर्ड ऑफ मैन बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन होती है सोशो पॉलिटिकल। सबके अपने अपने रिलीजन, पार्टी उनके अपने हैं। Being a Punjabi in Sindh, I was class 3 and our Sindhi fellow students, they once said कि तुम लोग पंजाब में क्यों नहीं चले जाते? So मतलब this is one of the things. But then that died. Same goes for the अच्छा, सिंध में बहुत सारे माशाल्लाह हिंदू हैं, उनके साथ बैठ के मैंने भी खाया लिटरली बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा, मसला कहाँ होता है, डिस्पैरिटी कहाँ पे आती है? सामने दुकान है हिंदू के सिर्फ मुसलमान है, कहीं कंपटीशन में कोई चीज़ आई तो वो मतलब उसको नुकसान पहुँचाएगा या कोशिश करेगा फिर उसको। अदरवाइज अच्छा, नगर पार्क जाने पर इतफाक हुआ 70% दे आर हिंदूज और 30% मुस्लिम, और सबका कल्चर एक ही है। अगर मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ तो दिस जेंटलमैन सिटी विद द बास्केट बेस को जो खिलाफत है तुर्की वाले जो है उनका आखिरी जो वो खिलाफत है, उनको आप देखते हो दे वेयर टाइज। हमारे बड़ों ने हमारी टाइज पे तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। आई थिंक यूर बेटर मुस्लिम विद देन बस दिस। सेकेंड इंट्रैक्शन जो बिहारी में सो लवली पीपल, जो जिससे आप कहते हैं ना, जो मैम ने बात की कि यूनिवर्सिटी जो है ना एक अच्छाई क्रिएट करने की अगर बात करें, आई वुड रियली मतलब मैं ये कहूँगा कि सैल्यूट टू देम। बहुत इंट्रैक्शन रहा लोगों से, इवन मतलब बहुत सारे इंसिडेंट, बात बहुत लंबी हो जाएगी, क्या की बात करते हैं। अच्छा, क्रिश्चियन भाई हमारे पंजाब में मेरा ननिहाल है, गांव में बहुत क्लोज आना था, अभी तक मेरे बेसिकली बाद में ससुराल भी वही बन गए, उनका अभी तक आना जाना है उनके साथ। सेकेंडली वहाँ के लिए भी और चाहे लोग वहाँ के लिए भी, हम नेवल ऑफिसर, ठीक है। कराची में आई यूज्ड टू गो टू द सेकंड फ्लोर, और वहाँ पर भी लोग जो नहीं जानते वो कहते हैं यार ये कोई खुफिया वाला उठ के आ गया, ऐसा नहीं है। वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। मैं अगर और मेरे साथ मेरा कोई दोस्त, दे डोंट लाइक टू सिट इन दिस थिंग्स। मकसद ये है कि अच्छा माई क्लास फेलो पोस्टमेट इज करंटली कमांडिंग अ शिप, नाम उसका कंवरा है, बट इज अ क्रिश्चियन। अच्छा, ऑन द लाइटर नोट जब रोजे आते थे मैस में हम लोग जब कर रहे थे तो हम उसको मजाक में कहते थे, भाई तो सुबह सहरी हमारे साथ करता है, फिर तू नाश्ता करता है, देन यू गो फॉर स्टैंड इजी, यूज द वर्ड स्टैंड इजी 10-11 बजे, चाहे फिर आप लंच करते, फिर अफ्तारी हमारे साथ करके फिर डिनर भी करते हैं। सेकेंडली आई स्पेंट अबाउट 2 years ऑन अ शिप। हमारे जो शिप की एक गैली थी, गैली इज अ किचन, उसका जो एक शेफ था, दैट जेंटलमैन वाज अ क्रिश्चियन। 60 मैन ऑफिसर प्लस मैन उस शिप पे, और वो 2 साल बने। किसी को मतलब हिंदू की मैंने बात कर दी, क्वेश्चन कोई नहीं है, सिर्फ जो मेन इशू में नज़र आ रहा है ना, मतलब जो मुझे नज़र आता है, सबका अपना पर पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि जहाँ पे आपकी वो चीज़ आ जाती है ना कि हमारे इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर मैं बीइंग मुस्लिम बात करूँ तो देयर इज नो डिस्पैरिटी फॉर एनी रिलीजन, इवन फॉर एथियस्ट। तो जैसे मैंने आल चलो मतलब अल्लाह ताला ने पैदा किया ना इंसान, चाहे वो फर्दर उसकी जो भी वो है चीज़ें हैं, क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं है। बस थिंग इज के हम आप सारे मुसलमान और बाकी लोग भी, अगेन फिर कल्चर की बात की, मैडम अब ये मैडम हु सेज के शी इज हिंदू, अपेरेंटली अगर देखा जाए शी लुक्स लाइक अ मुस्लिम रिलीजियस फैमिली के घर की लग रही है। इट्स बेसिकली द इलाके का कल्चर। जैसे मैं तुर्की के एग्जांपल थी, इधर मुस्लिम देखो टाइप है, और मतलब उनकी खिलाफत जो थी वो टाइप है। मैंने देखे वो ड्रामे जो आ रहे हैं, अब्दुल हमीद खान वाला ड्रामा देखे, जिससे बेसिकली लैंड का कल्चर उसके ऊपर हम चल रहे होते हैं। सेम गोज फॉर दी पाकिस्तान, वी हैव आवर ह्यूमंस और गुड थिंग, बड़ी अच्छी चीज़ है।
Thank you. Thank you. अच्छा, I'd like to add to this. He's very right कि cultural adaptations होती हैं और most of the religions उनके जो rituals हैं ना, मैं अगर हिंदुज़म की बात करूँ तो बहुत से rituals जो है वो regionally adapted हैं। अगर आप फेस्टिवल्स को ही देख लें तो एक ही फेस्टिवल यहाँ कुछ और तरीके से मनाया जाता है, इंडिया में गुजरात में किसी और तरीके से मनाया जाता है, उसी तरह सिक्किम में किसी और तरीके से मनाया जाता है, बंगाल में अलग से। तो बहुत सी चीज़ें वो रीजनली अडेप्टेड हैं, पर्टिकुलरली रिलीजन का पार्ट थी नहीं लेकिन कल्चर में अडॉप्ट, मतलब एक वो हो गया उसमें क्रिएट कर लिया रीजनल अडेप्टेशन। एंड एज जितना मैंने हिस्ट्री को मतलब इट वाज अ सब्जेक्ट इन यूनिवर्सिटी तो पढ़ा, तो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है आई लाइक टू शेयर फ्रॉम बुद्धिज्म एज वेल कि जिस तरह जब क्रिश्चियनिटी स्टार्ट के उसके जो अर्ली ईयर्स थे और जब वो फैला, तो जब रोमन्स दे कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी तो वो इनिशियली वहाँ पे स्कल्पचर्स नहीं थे, लेकिन रोमन्स के जो एम्परर्स थे दे यूज्ड टू मेक देयर स्कल्पचर्स और वो चीज़ें थी, देन दे अडैप्टेड इट इन क्रिश्चियनिटी बिकॉज वो अपना कल्चर लेकर आ गए क्रिश्चियनिटी के अंदर। इनिशियली अगर मैं रॉन्ग जस्ट इंटरप्ट बट दिस इज व्हाट आई स्टडीड थ्रू हिस्ट्री कि इनिशियली वहाँ पे स्कल्पचर्स या आइडलेट्री नहीं थी, लेकिन जब रोमन्स ने अपना कल्चर लेकर आए वो कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में, तो उनको ना वो जितना हमें तुम्हारे लेक्चरर्स ने बताया था कि उनको वो अच्छा नहीं लगता था, उन्हें खूबसूरती चाहिए थी, डेकोरेशन चाहिए थी कि वो चर्चेस क्यों इतने ब्लैंक हैं। सो दे स्टार्टेड यू नो पुटिंग थिंग्स ऑन द वॉल्स एंड स्कल्पचर्स भी ऐड कर दिए, पेंटिंग्स भी बनानी शुरू कर दी जस्ट टू ब्यूटिफाई इट बिकॉज दे हैड ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर्स एंड दोज थिंग्स। तो दैट्स हाउ इट इवॉल्व्ड। और फिर वी स्टडीड अबाउट बुद्धिज्म एज वेल। इसी तरह से बुद्धा के जो स्कल्पचर्स हैं वो इंडिया के किसी और इलाके में कुछ और तरह के और यहाँ पे कुछ और तरह के, एंड देन वी स्टडीड दैट कि जो यहाँ पे थे स्कल्पचर्स उनमें यूजुअली दे वर दैट स्कल्पचर हैड विंटर बूट्स एंड रोब्स, ये चीज़ें थी। तो वो क्योंकि डिफरेंस था ना वेदर का, क्लाइमेट का, तो जो लोग देखते थे वो वैसी चीज़ें बना देते थे। तो एक्चुअली तो बुद्धा ने भी मना किया था, उसने कहा था दैट्स व्हाट आई स्टडीड कि मेरे 40th सर्मन जो मॉन्क्स होंगे उनके 40th मॉन्क के बाद देयर विल बी चेंजेस। ही प्रेडिक्टेड दैट देयर विल बी चेंजेस इन द रिलीजन, इवन ही यू नो प्रेडिक्टेड इट कि ऐसा नहीं रहेगा। उसमें भी स्कल्पचर्स नहीं थे एंड दे इवॉल्व्ड लेटर ऑन। प्रोबब्ली दैट दिस इज व्हाट हैपेंड विद हिंदुइज्म एज वेल। Hinduism also teaches oneness of God. It's not a pagan religion. मतलब हम लोग multi gods नहीं हैं, ऐसा नहीं है। It teaches oneness of God. ओम जिसे हम कहते हैं, जैसे मैम ने भी कहा कि सूरज की जैसे वो आप ले लें कि श्वाय है या वो धूप है, तपिश है, तो इट्स नूर की बात कर रहे हैं। नूर ही है, अल्लाह खुदा वो नूर ही है। हम उसे ओम कहें, हम उसे अल्लाह कहें, उसे गॉड कहें, फिर गुरु नानक देव जी के अल्फाज में उसको वाहे गुरु कहें कि ही इज़ द इटर्नल ट्रूथ एंड ही इज़ द इटर्नल गुरु। तो वो नूर ही है, वो एक ही है। उसके आगे जितने हम कर लें कि जी उनके उन्होंने आगे से जैसे हिंदुइज्म में है कि त्रिमूर्ति बनाई, त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा को कह दिया कि आपने लोगों को बनाना है, विष्णु ने उनको नरिश करना है, and then Mahesh has to punish them, he has to give death to people, and then further gods and goddesses were created, but these were all created by people themselves, right? This is not what the religion actually says. अगर हम हिंदुइज्म में भी देखें तो वेद कोई भी नहीं पढ़ता, सब गायत्री मंत्र की अगर आप उसकी ट्रांसलेशंस देखें तो वो वननेस पे ही है बेस्ड है। If you just have a translation of it, so Hinduism भी वननेस प्रीच करता था, that is a commonality, ठीक है। बाकी रिलीजन्स भी वननेस ही प्रीच करते हैं, बट आगे जो चीज़ें हैं जैसे रिचुअल्स भी हैं और बाकी भी अडेप्टेशंस हैं वो कल्चरली है, लोगों की बनाई हुई है, चेंजेस हैं। जैसे जैसे स्टोरी आगे चलती जाती है उसमें और एडिशंस होते चले जाते हैं, बट अगर हम पीछे जाके देखें और ऑथेंटिसिटी के साथ उसको सर्च आउट करें तो there is a connection between all the religions. This is what I have studied as far. मैं ऐड करूँ कुछ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। काफ़ी चीज़ें जो आपने कल्चरली अडॉप्ट करनी है, जैसे कि आप देख लें क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज, इसका बाइबल में कोई जिक्र नहीं है, बस ये पहुँच गए हैं आप, तो लोग चर्चिज में तो बना रहे हैं।
और जीसस का स्टैचू बना है, इसमें भी बाइबल अलाउ ज़रा भी नहीं करती, बस रोमन कैथलिक वो जो आप बता रही थी बिल्कुल। वहाँ से स्टैचू बना दिया और आगे चल रही है। ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कल्चर के बाद हमने अडॉप्ट कर ली, कल्चर के साथ साथ अडॉप्ट कर ली। एक हमारा क्वेश्चन और आप कमेंट क्या करेंगे? बच्चों मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ा देर से पहुँचा। बेटी ने जो बात की है, आई एम लिटिल ओल्डर टू ऑल ऑफ यू एंड आई हैव एक्चुअली लिव्ड दिस कल्चर एज अ किड इन लाहौर। तो मेरी पैदाइश 1958 की, और अब जब मैं पीछे देखता हूँ तो पाकिस्तान को बने हुए 11 साल हुए। वो मेरी तालीम 8वीं तक मिशनरी स्कूल में हुई, जहाँ हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरा दोस्त एक अहमद है तो दूसरा लेस्ली है। हम दोस्त थे, उन्होंने हमारे साथ ईद मनानी, हमने उनके साथ क्रिसमस मनानी, और सेलिब्रेशन क्या थी, पतंगे उड़ाते थे लोग। हमारे स्कूल के अंदर एक चर्च था, सेंट एंथनीज का कैथेड्रल हमारे स्कूल में था, और अंदर जाना, हमने वो देखना स्टैचूज को। अब अगर आप एक सर्वे करा लो ना बच्चों से, कुरान हमें पढ़ाया गया ताकि हमारे वालिदैन, और वही हमने अपने बच्चों के साथ किया कि हम एक अपनी लाइफ का एक बॉक्स और टिक कर दें कि हाँ जी कुरान भी पढ़ाती। अगर आप बच्चों से आप पूछे ना कि आपका सबसे पसंदीदा टीचर जिंदगी में कौन गुजरा है, तो 99% ये कहेंगे कारी साहब। ना पसंदीदा सख्ती से, स्टैटिस्टिक तरीके से, ठीक है। तो ये हारमोनी थी। जिस तरह इस बच्ची ने कहा सबीले हमने लगाई, अपने से बड़े बच्चों को देख कर उनकी नकल में एक मेज रख लिया, 2-3 गिलास, एक जग, पता नहीं था क्या करना। फिर अपने से पूछा यार करना क्या है इसका, उन्होंने कहा यहाँ से जुलूस गुजरेगा, तो गर्मी है आपने पानी पिलाना। 10 मुहर्रम का हलीम हमारे घर में बनता था, हर घर में बनता था। 11वीं शरीफ की ख़त्म आती थी, मेरी वालदा को आई एम श्योर नहीं पता था कि बैकग्राउंड क्या है, पर एक शेयरिंग थी, खुशी गमी, ठीक। और अगर आप मज़हब रिलीजन को आप ट्रांसलेट करते हो तो उर्दू में मज़हब बनता, और मज़हब है तहजीब से। सो कल्चर इस बुरी तरह फंस जाता है आपके ज़हन में। आप जब अगर बाहर गए हो या बाहर जाओगे ना, इंसान को आदत है एसोसिएशन डेवलप करने की, क्योंकि यार इनमें से एशियन कौन है, क्योंकि यार ये 15 एशियन है, इनमें से सब कॉन्टिनेंट का कौन है, आप उनके साथ। फिर आप कहोगे नहीं यार पाकिस्तानी कौन है, तो नहीं यार पाकिस्तानी नहीं, पंजाबी कौन है, इस्लामाबाद ना, दैट इज हाउ यू। एक दिन मैं बाहर गया, तो ये तफरीक डेलिबरेटली पैदा की गई है। एक तो मैं बाहर पाकिस्तान से, मुझे एक सिख बिरादरी के लोग मिले, मैं उनके साथ बस में बैठ गया। तो बैठते मैंने कहा उससे ना, मैंने कहा सरदार जी पंजाबी बोलते हो, उसने कहा जी, फिर हम स्टार्टेड टॉकिंग इन पंजाबी। तो मैंने कहा पाकिस्तान आया कभी, उसने कहा मैं कुछ साल पहले कराची आया था। कहता मैं शॉपिंग करने गया, तो दोस्त ने जो लेने थे कपड़े लिए, और उसके बाद मैंने बताया कि वो बेटी मेरी शादी है, उसके लिए भी शॉपिंग करनी। कहता उसके बाद उसने जब बिल बन गया, सारा हो गया, तो एक साड़ी निकाली, कहता ये हमारी तरफ से बेटी के लिए। जज्बात की कोई कीमत लगा सकता है, प्राइसलेस। तो 5 जुलाई 1977 से पाकिस्तान उससे पहले का एक था। 5 जुलाई को क्या हुआ था 77 को, पाकिस्तान का 11 साल तारीख दौर शुरू हुआ। तफरका ये नहीं कि उसने मुसलमानों को ईसाइयों से लड़ाया या हिंदुओं को सिखों से लड़ाया, या मुसलमानों के अंदर इतने फिरके पैदा कर दिए कि बस एक आदमी कॉल देता है और फिर वो सारी कौम मॉब मेंटेलिटी में आ गई कि बजाय हकीकत को जाने में वो कहते बस ठीक है यार। फिर उनको अफसोस चाहे बाद में आता होगा, लेकिन ये तो हम जुल्म कर रहे हैं। और डोमिनेट करने की आदत जो है ना,
पे, वो इंसान के अंदर है। आप एक दो बच्चों को ना एक साथ कर दे, एक साल का होगा, दूसरा 6 महीने का, तो साल वाला जो है ना वो उसको दबाएगा, उसके ऊपर बैठेगा और उसके बाल खींचेगा। जब वो बच्चा दूसरा रोएगा अजियत से तो ये खुश होगा। ये इंसान की फितरत में कुछ है कि डोमिनेट करना है और अपने आप को स्टैंड आउट कराने का है ये चीज़। अब जो जिसको हिंदू कह रहे हैं उसको एक लॉस्ट ट्राइब ऑफ क्रो भी कहते हैं। कश्ती में से जो एक कबीला बिछड़ गया था, आपने 99 नाम दिए, उन्होंने 99 शक्लें दे दी। वही एट्रीब्यूट्स हैं, रहमान है, रहीम है, ठीक है। तो बैक पे जाके सब चीज़ें, और हमारे भी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था से उन्होंने क्या कहा कि आज मैंने दीन ये अखलाक को मुकम्मल कर दिया। दीन का मज़हब का लफ्ज़ इस्तेमाल, दिस इज एन ऑन गोइंग हारमनी। अगर हम ये तहैया कर लें कि यार आज हम जाके ना किसी से ये नहीं पूछेंगे कि भाई आप कौन है, किस बैकग्राउंड, किस फैमिली, किस रिलीजन, वी आर हियर टू वर्क टुगेदर। तो थोड़े दिनों में आप चाय भी पिएंगे, हम खाना भी खाएंगे, आप शादी में खुशी करने में फिर से शरीक होंगे। तो सूफिया कराम ने जो पैगाम बनाया वो प्यार का था। कभी नहीं आने वाले से पूछा कि भाई तुम कौन। एक ट्रीटमेंट, एक लंगर खुला हुआ था, जब भी की बात मोहब्बत की बात। मेरी बात थोड़ी लंबी हो रही है, तो ये बच्चों आप लोगों के, और आप लोग जो है ना, मेरी नज़र में आप लोग हमसे बहुत बेहतर हो, हमारी जनरेशन। एक तो वो टिपिकल बुजुर्ग होते हैं ना, कहते हैं कि यार पता हमारे ज़माने में नहीं होता ना। हर आने वाला ज़माना पिछले से बेहतर है, एवोल्यूशन है, इंटेलिजेंस बढ़ रही है, एक्सपोजर आप लोगों का हमसे बहुत ज़्यादा है। और एक अच्छी बात जो आप लोगों की जनरेशन ने ये देखी है कि लोगों को डिस्कस बहुत कम करते हैं हमारे मुकाबले में। अब की होगा ना, सामने एक बंदा बैठा है, जरा सा हटता था फौरन जजमेंटल हो गई, यार अभी तो देखो कितना पारसा बन रहा है इसकी फीचर को। यू पीपल आर मच बेटर देन अस, ठीक है। अब ये इन्होंने नेवी में कुछ अर्सा मैंने गुजारा और उन्होंने बड़ी अच्छी बात है। हमारा भी कोर्समेट था, वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद की फैमिली से ताल्लुक था, तो एक दो बड़ा गया, उसको मिला, वो बड़े शदीद गर्मी और रोज़ा रख कर बेचारा गर्मी और भूख से निढाल पड़ा हुआ। तो हमारे एक दोस्त ने ना, खैर पोस्टमेट्स का मजाक और होता है क्लास वालों से, उन्होंने कहा यार और फॉल दी पीपल तुमने क्यों रोज़ा रखा? उसे क्यों क्या हुआ? कहते तुमने तो आगे भी दोज़ख की आग में जलना, तो याद होता अल्लाह माफ़ करे, वो एक मजाक के तो मजाक भी उससे आप करते हैं जो टॉलरेट करता है। तो इस बेटी ने बहुत अच्छी बात की, हमें टॉलरेट करना है कि हम में से कोई भी बाई चॉइस ना मुसलमान है, ना ईसाई है, ना हिंदू है, ना सिख, ठीक है ना। हमें जहाँ किया गया है तो उसी बताया गया कि यार तुम सही हो। और आगे भी हिंदुओं का आ गया, ब्राह्मण सबसे टॉप पे है और शूद्र सब, यार हु हैज क्रिएटेड दिस क्लासिफिकेशन। मुसलमानों का भी सैयद ऊपर है, फिर उससे नीचे है, फिर उससे नीचे है। जहाँ पर वो नहीं था वहाँ ज़ात के ऊपर आ गया कि राजपूत जो है वो सबसे ऊपर है। वो दूसरे घराने पैदा हो रहा है, उससे कहते हैं यार तो एक हद तक ये प्राइड इनकलकेट करना ज़रूरी है, बट नॉट बियॉन्ड सर्टेन लेवल। फिर उसके बाद ये कि यार लर्न टू को एग्जिस्ट और इंसान को प्यार करना सीखो। बात लंबी होगी बेटा, माजरत चाहता हूँ, बहुत खुशी हुई आप सब से मिलके। और ये पाकिस्तान से ज़्यादा आप जाओगे बाहर, बट ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये मज़ीद कंसोलिडेट हो जाएगी कि इससे अच्छा मुल्क कोई नहीं दुनिया। हमारे से अच्छे लोग कोई नहीं, बिगड़े हुए हालात में भी आपकी गाड़ी खराब हो जाए, आप रुक जाए, चौथी नहीं तो पांचवी गाड़ी जरूर रुक के पूछेगी कि जी क्या मसला है, और स्पेशली अगर आपके साथ फैमिली है। चलो खुश रहोगे सारे। थैंक यू। चाय आ गई, साथ साथ चाय पीते हैं और हम बाकी कमेंट्स पे जाते हैं।
एक सिर्फ मैं चीज़ ऐड करना चाह रही हूँ यहाँ पे फिर से सस्ती मार्केटिंग पे आ गए तो ये वाला जो सेशन है सारा ये हमारे यूट्यूब पे होगा। यूट्यूब पे हमारा चाइल्ड के नाम से चैनल है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिर हमारे और भी इस तरह के सिमिलर सेशंस हैं। दूसरा आप हमें प्लीज़ बहुत ज़रूरी है अभी अगर कर सकते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लाइक करें ताकि आप सारी अपडेट्स के साथ एक पोस्टेड विद एवरीथिंग। हम मार्जी की तरफ चलते हैं और उसके बाद बात ओके सो आई जस्ट वांटेड टू मैं चाह रही थी कि जो बात अभी कॉन्वर्सेशन हो रही थी देयर वर अ फ्यू पॉइंट्स जो कि बातचीत पे बात हुई। आई जस्ट वांटेड टू रीआइट्रेट देम एंड शेयर माय थॉट्स। जिस तरह से माहा ने कहा कि आजकल के दौर में इट्स बीन 15-20 years के हम देखते हैं कि ज़्यादा स्टीरियोटाइपिंग है। हाउएवर व्हाट अंकल शेयर्ड I feel the same that we as a generation have the advantage कि हमारे पास information का इतना easy flow है, but then how to filter out that information so as to know what is reality and what is again that man-made fact, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो उसका शऊर शायद as a young generation हमारे अपने अंदर develop करना होगा। How to differentiate between the facts and the things that have been created through years of man dealing with religion and changing it according to their own preferences and according to their own wishes. So this is one. So these are just thoughts that I'm sharing. Secondly, ये कि I mean आज का ये जो session है it's really interesting because we get to learn how all the religions come from the single source, and even when there are perceptions that Hinduism is not from God or maybe certain religion is not from God, but then when we read the religion in actual terms, we read the writings, we get to know that yes, all religions teach the oneness of God, they teach loving humanity, they teach living together in harmony, and no religion teaches you to hate the other. लेकिन ये hatred जो है it's there from the time religion started. क्यों? क्योंकि जब एक religion आता था फिर उसके बाद जब खुदा दूसरा religion भेजता था तो जो पहले वाले होते थे वो शायद अपने religion के क्योंकि तालीमात को भूल चुके होते थे या वो अपने religion से पार्ट नहीं करना चाहते थे, वो उसको they wanted to hold on to it. So they won't accept the new religion or the new manifestation. और इसी की वजह से ये जो religious intolerance है, it's there from the beginning of history. लेकिन आज जब इंसानी शऊर इतना बालिग होता जा रहा है, and we have this technology that we have, and अगर आप पिछले 200 साल का उससे पहले के दौर से मुवाजना करें तो पता चलेगा कि कितनी ड्रास्टिकली इंसान ने शऊरी तौर पे तरक्की की है, जहनी तौर पे। ये जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है and all the advancement that we have in this day and age is because that man is going towards maturity. हमारी जो सोच है वो बालिग हो रही है। आज से अगर हम 200 साल पहले के इंसान की सोच के साथ अपने सोच को कंपेयर करें तो वी विल सी कि आज का जो जवान है वो उस दौर के बालिगों जैसी सोच रखता है। Even our junior youth like 12-15 years old, they have so much maturity, they understand difficult concepts that maybe we as youth wouldn't understand. So just to recognize that maturity of humanity and to work towards that, try to हमें शऊरी तौर पे ये कोशिश करनी चाहिए कि हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को हाईलाइट करने की बजाय एक दूसरे को समझें और टॉलरेंस से एक स्टेप आगे बढ़े। आई मीन टॉलरेंस इज नॉट इनफ। टॉलरेंस तो ये है कि अच्छा आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू someone who's from another religion than me and I just bardasht him. Tolerance is bardasht. We should go towards love. We should go towards loving each other, accepting each other and living together in harmony. Harmony requires that strong feeling that comes from within, that yes, this is my fellow being. I have to work with him. I have to work shoulder to shoulder with him for the betterment of this world and to make this world a better place for the generation that follows us. So I feel that these are just thoughts that are very important for our generation, to have such sessions, get to know each other and to diminish those, get rid of those prejudices or those stereotypes that we have, and that will only
वो तभी होगा जब हमारी जो है वो ये कॉन्वर्सेशंस होंगी, हम एक दूसरे से बात करेंगे। जब हम एक दूसरे को रिलीजन को समझना ही नहीं चाहेंगे, पढ़ना ही नहीं चाहेंगे, अगले की बात तक सुनना नहीं चाहेंगे, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारे जैसा ही है? उसमें और हम में सिर्फ एक इतना सा फर्क है कि वो शायद किसी और पे यकीन रखता है और मैं किसी और पे, लेकिन दोनों एक ही जगह से आए हैं, तो फिर क्या फर्क है? So I mean that is the conversation and that is the thought process that needs to be, you know, cultivated among the youth, and it is there. Fortunately for us, it is there. It is growing, and that needs to be, you know, nurtured. एक मिनट बेटा, एक्सीलेंट। ये कंडीशनिंग का एक लफ्ज़ है, इसको पढ़ना जरा। वी आर ऑल कंडीशनड। हाथी का बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उसके पाँव में रस्सी बांध के वजन बांधते हैं। 7 साल में ना वजन उतार देते हैं, लेकिन वो फिर भी समझता है कि मेरे साथ वो वजन ठीक। अगर आप पाकिस्तान का एक हिंदू और इंडिया का हिंदू जब वो दुबई में मिलेंगे ना, उनका आप हेट्रेड देखना, दे आर नॉट द सेम। दिस इज ऑल कंडीशन। हमें जो है ना बहुत सिवियर कंडीशनिंग हमारी मल्टीपल एंगल्स पे। So I think that I totally agree with that, and then again वही consciousness ज़रूरी है to realize कि these things have been imposed upon her. There are so many forces around us that are conditioning us in this way. हमें जिस तरह से इन्होंने शेयर किया कि कल्चरल प्रॉब्लम्स को या सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को रिलीजन का रूप धार दिया जाता है। मसलन अगर 2 दुकानों में मुकाबला है इकोनॉमिक्स पे, तो उसमें रिलीजन को बीच में ले आते हैं बिकॉज इट्स इजी टू यू नो मैनिपुलेट समवन विद रिलीजन, और वो क्योंकि सबके लिए बड़ा टची टॉपिक होता है, तो इसी वजह से हर कोई उसको प्रोटेक्ट करने में लग जाता है। तो आई थिंक वी नीड टू गो बियॉन्ड दैट, एंड ये मैसेज को एजुकेट करने की शायद ज़रूरत है कि रिलीजन आपका वही है जहाँ उसको जो है उसको कुछ नुकसान नहीं पहुँचेगा। आपने अपने मसलों को दूसरे अंदाज में शायद मिल के you know through different means उसको हल करना होगा, rather than to bring religion in between and make it a point of dissension. अच्छा, मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाह रहा था कि इतनी अच्छी गुफ्तगू सबने की, लेकिन ह्यूमन बीइंग क्योंकि खुद एक इंडिविजुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सोसाइटीज को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अक्सर ये होता है कि जब हम एक ब्रश में रिलीजन को खुद ही छूट भी दे देते हैं ना कि रिलीजन ऐसा नहीं कहता, रिलीजन तो है ही लव का। तो भाई इसी दुनिया में क्रूसेड्स भी हुई हैं, अभी भी जंगें हो रही हैं, बर्मा में बुद्धिस्ट सप्रेशन भी हुई है, हिंदुत्व भी एग्जिस्ट करती है, शिया सुन्नी फसादात भी हो रहे हैं, फोर्स कन्वर्जन भी हिंदू लड़कियों की हो रही है, एंड सो फोर्थ, यू नो दे आल्सो बोरो फ्रॉम द सेम रिलीजन एज वी डू। तो रिलीजन को जब हम या इधर एज एन ईवल और एज अ फोर्स फॉर गुड बस पोर्ट्रे करके छोड़ देते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक मुझे लगता है हो जाता है, क्योंकि फिर एलिफेंट इन द रूम जो है ना वो डिस्कस नहीं हो पाता। इधर इट बिकम्स हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ नथिंग इज हैपनिंग, और फॉर द विक्टिम इट बिकम्स यू नो दिस इज अ फोर्स दैट आई एम बीइंग ऑप्रेस्ड थ्रू एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एक बड़े मजे का एक्सपीरियंस है, क्योंकि तकरीबन पाकिस्तान के 50 शहरों में मैंने काम किया है, सारी कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर काम किया है। बहुत सारे साथी भी हुए हैं रास्ते में। मेरे 3 कज़न टारगेट किलिंग में मारे गए, 3 दोस्त, एक उनकी तस्वीर ये लगी हुई है, अली रज़ा आबदी, ही वाज किल्ड 2 years ago इन कराची फॉर हिज फेथ। तो यू नो मुझे थोड़ी बातें थोड़ी सी लगती हैं कि टर्शरी लेवल पे बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल भी हो जाती हैं जब हम सिर्फ ये कहते हैं कि रिलीजन सिर्फ लव का है। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जिस रिलीजन को मैं समझता हूँ या जो मुझे लगता है वो है, लेकिन हम अगर ये कह दें कि इस्लाम सिर्फ लव का रिलीजन है, तो भाई इस्लाम से मैं आपको ऐसी चीज़ें भी बता देता हूँ जो कि लव की नहीं है। ठीक है जी, तो वो जो रिलीजन है इस्लाम का, वो उसी बुक से आया है, उसी हदीसों की किताबों से आया है, उन्हीं उलमा ने बताया है, तो उसको आप क्यों पिक एंड चूज करके इग्नोर करने कन्वीनियंटली इग्नोर कर रहे हैं, यू नो। तो मुझे लगता है कि हमें उन डार्क कॉर्नर्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा और उसको डिस्कस करके मेन स्ट्रीम पे लाके या तो उसको परे रखना पड़ेगा और आगे इवॉल्व करना पड़ेगा एज अ बेटर सोसाइटी। लेकिन उसके होते हुए हम आगे चलना ना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। देखें, मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैंने पाकिस्तान के अलावा 4 और मुसलमान मुल्कों में काम किया, जॉर्डन, अबू धाबी, नाइजीरिया और सऊदीया में थोड़ा बहुत काम किया। जो इस डोमिनेंटली मुस्लिम सोसाइटीज़ में माइनॉरिटीज़ का हाल है वो उस पर कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। कोई शक है तो आप गूगल कर लें तो आपको सारे इंडेक्स मिल जाएंगे। ह्यूमन राइट्स का इंडेक्स देख लें आप, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इंडेक्स देख लें आप, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ का इंडेक्स देख लें आप, इन तमाम मुल्कों में एक जैसा ही है।
हमारे यहाँ कदरें थोड़ा बेहतर है, लेकिन वो सियासत की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने ज़्यादा दो एंड पे या तो तालिबान बन गए हैं कि रिलीजन ये कहता है कि गले काट दो, दूसरे एंड पे हम बिल्कुल ही उसको इग्नोर करके कि नहीं जी ये तो बुरा है ही नहीं, ऐसे ही चलते रहो, और फिर हम वो बुराई को इग्नोर करके उसका सद्भाव नहीं ढूंढते ना। मुझे आप लोगों के रिलीजन्स का इतना नहीं पता, मतलब क्रिश्चियनिटी का या हिंदुइज्म का फ्रैंकली या बहाइज्म का, लेकिन मुझे ये पता है कि इनमें से 5 में से 4 रिलीजन पैसिफिस्ट तो नहीं है, जंगें की हैं, मिलियंस ऑफ लोगों को मारा है, अभी भी मर रहे हैं। क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट ने अभी भी पिछले दिनों कुछ अटैक्स वगैरह क्लेम किए थे। तो मुझे लगता है कि वो एलिफेंट इन द रूम ना, अक्सर हम जैसे जब ड्राइंग रूम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हम उसको बात नहीं करते, जिससे वो कन्वीनियंट या इनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा नहीं होती कि हम उन डार्क कॉर्नर्स को एक्सप्लोर करके उसको ओवरकम कर सकें। जैसा कि एक बड़ा मशहूर फिलोसफर कहता था ना, इट टेक्स मोर करेज टू फाइट और टू एक्सप्लोर द डार्क कॉर्नर्स ऑफ योर ओन सोल देन इट टेक्स फॉर अ सोल्जर टू फाइट ऑन अ बैटलफील्ड। इट टेक्स मोर करेज कि आप अपने अंदर घुस के अपनी डार्कनेस और जो आपका बिलीफ है उसकी डार्कनेस को एक्सप्लोर करके बाहर निकालें, बजाय इसके कि आप दूसरे को वो करें। तो मुझे लगता है कि ये भी एक फैक्टर इसका है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। Thank you. I think Basant has a comment to make. अगर टाइम खत्म होते तो Maybe हम officially हम discussion को close कर सकते हैं, लेकिन आपने आप कर दीजिए, उसके बाद बात करेंगे, Okay. ताकि मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो जाए। अच्छा ठीक है, तो officially I think we should just end it and thank you so much for coming and trying. Snacks पे और चाय पे बाकी गुफ्तगू कैरी ऑन करते हैं, तो अभी YouTube के लिए इतना ही है। ठीक है।